एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 2। आज हम कोलकाता में बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग की। अब फ्लोर हम ओपन करते हैं ऑडियंस के लिए। जिस किसी का भी सवाल है हमारे पैनलिस्ट से, प्लीज रेज योर हैंड। नमस्कार, मैं गौतम मंडल कोलकाता से। मेरे फादर का लास्ट 20 साल से बिजनेस है सिरेमिक ट्रांसफर का। तो इस बिजनेस में पिताजी को लास्ट 20 साल हो गए हैं और मेरे पिताजी की जो टर्नओवर है वो नियर अबाउट 2 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अभी जब हम बैंक में हम लोगों ने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक में जो कोलेटरल जो आप लोग कह रहे हो, हम 70 लाख की प्रॉपर्टी देने को राजी हो गए, उसके अगेंस्ट बैंक हमें 40 लाख रुपए देने को राजी नहीं है। तो इसमें बताओ हम लोग कहाँ अप्रोच करें? देखिए, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं। पहली बात, आप अपने बिजनेस मॉडल पे लोन ले रहे हैं। याद रखिए कि बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर देता है या बिजनेस के लिए देता है तो कोलेटरल मात्र एक सिक्योरिटी है। एक्चुअली जो फंडिंग है वो आपके कैश फ्लो पे, आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे जो अगले 4 साल 5 साल पे, यानी बैंक ने जो आपको आज 70 लाख 80 लाख दिया, वो किस तरह से बैंक का पैसा वापस आएगा, आप इंटरेस्ट कैसे सर्विस करेंगे, ये उस मॉडल पर आधारित है। तो याद रखें कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बैंक को देते हैं, कोई फ्रेश आइडिया हो, तो जब तक वो बैंकेबल प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज बैंक पब्लिक फंड से डील करता है। आप ही का सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में पैसा है जो बैंक में है, और बैंक मैनेजर्स भी आंसरेबल हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर। This is Kunal from IIM Calcutta. Mr. Hari and Mr. Lakshman mentioned about the need to create an ecosystem, where you have an easy access to financiers, and the need to integrate the various stakeholders as such. If you look at the Silicon Valley, which is probably the most successful of all such ecosystems, we find that local government played a very important role in doing so. You also mentioned about the role of government. So I just wanted to ask, what more can Indian government do in creating such ecosystems, and how has Indian government fared till now? I would like to answer this. Especially in the government of India in the last 5 years have come out with some outstanding schemes. Unfortunately, the implementation is lagging far behind because the entire government machinery itself is not educated. That's number one. And number two is good schemes, unless they are actually reached to the real beneficiary, it is not going to create any impact in the social system. Government of India has got excellent policies, excellent funds for innovation, but when you are hungry, if you don't get food, when you're dying, if somebody is going to give you food, what's the use? Time is very, very important because the implementers do not have any sense of time. They take their own sweet time. They'll find a reason why this should be delayed. Whereas an entrepreneur gets frustrated at that time. He gets more and more frustrated. And many people I have seen, especially in all the technology institutions, just because of delay, they have abandoned projects. सही टाइम पे इलाज नहीं मिला था कि उसका फिर फायदा क्या है? Hi, good evening. I'm Samir Biswas. We are also started very recently a startup company. My question to Rajiv as well as Mr. Sharma from SIDBI. We started in 1 year back, and as you rightly said, go and approach the bank. So we met the SMSCC of bankers of every Indian, and AGM got convinced, GM got convinced. We submit the file. Then somebody came for inspection. So when he came, he was very much appreciating. And after 6 days, we got a letter. It's not a bankable project. So if this kind of situation arises, what will happen? To Mr. Sharma, we approached SIDBI for last 6-7 months. We are just running every day, and somebody transferred, something has happened, and nothing has come up. So if something happens, company like us, where we invested on 50 lakhs from our side, and we're looking for some 1.5 crore, something like that, but nothing has come up. So how to address those particular issue for Rajiv and Mr. Sharma? Mr. Sharma, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर वो कहते हैं कि bankable नहीं है, तो then we'll have to go into the case and see whether it is bankable or not. आप चाहे पैसा डालने के लिए you are willing, but लेकिन अगर it is judged non-bankable by the person, then it's very difficult. Good evening, sir. Myself Piyush Poddar, and I'm a young entrepreneur. Now, I wanted to ask, we have started a company, and in the time of bridging the working capital gap, we are facing some problems of working capital. Now, we have approached some investors. We are having words with them also. आप अपना बिजनेस प्लान बनाइए, गो टू अ बैंक, आप वर्किंग कैपिटल मांगिए, पर्सनल लोन मत मांगिए। आप अपनी कंपनी के अकाउंट के लिए, अगर आपका करंट अकाउंट है, तो आप बिजनेस मॉडल देके उनसे आप सीसी लिमिट
के सैंक्शन के लिए बात करिए। आपको 1 करोड़ से कम चाहिए, जाहिर है 10-15 लाख की सीसी लिमिट चाहिए होगी, वो बिना किसी गारंटी के मिल सकती है CGTMSE के अंडर, और उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 15% की आज के मार्केट के हिसाब से मिल सकता है। आपका जो टर्नओवर है उसका लगभग 20%, एक थंब रूल के हिसाब से देखें तो यू आर एलिजिबल। मेक अ बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंसल्ट समवन, पुट इन द डॉक्यूमेंट्स इन एनी बैंक। लेट मी रिमाइंड यू फ्रेंड्स that in India, even in a remote village, someone buying a buffalo or opening a small poultry farm must have availed a 10,000, 40,000 rupee loan from some bank somewhere. Nupam Baid, I'm a second generation, 30 years old. My father started. So I just want the panelists to throw more light on this credit guarantee scheme, and why are private banks shying away from this implementing this scheme. No, and regarding this West Bengal specific, what are the incentives, interest rates, subsidies and everything which is available in West Bengal? Rajiv, can you throw some light? See the schemes are same. There is nothing specific for a state. There are central funds which are there, and I think offline also we can speak on these. What are the specific schemes which you can avail of? Thank you. Very quickly, allow me to answer. क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम सभी बैंक्स हैं, और बैंक्स थोड़ा शाई इसलिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि सभी बैंकर्स को, या हो सकता है आप जिस ब्रांच में गए हो तो किसी मैनेजर को स्पेसिफिकली, वरना ज्यादातर बैंक्स इसको हेल्प ले रहे हैं। 75% उनका फंड प्रोटेक्ट हो जाता है, और इट्स अ ग्रोइंग, द पॉपुलैरिटी इज ग्रोइंग। और सेकंड, जो आपने स्टेट बोला, 2 तरह की सब्सिडीज हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जैसे कि आप कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब इन्वॉल्व कोई लेंगे तो एक है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, आपको 15% की सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडीज देती हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिट स्टार्ट करने के लिए। हाल ही में मैं एग्जांपल देता हूं, लास्ट वीक की बात है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली बार एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को सभी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि आप यूनिट लगाते हैं तो आपको जो बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट है उसके बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उनको ये लगा कि माइक्रो यूनिट के लिए बहुत मुश्किल है किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में दूर जाके यूनिट लगाना। तो उन्होंने ये सभी डिस्ट्रिक्ट लिए कर दिया। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की सब्सिडीज को आप जरूर चेक करिए ICC से, लेकिन बैंक सब्सिडीज हर जगह अवेलेबल है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, लेकिन एक शब्द जो कि बार बार सुनने को मिल रहा था, बैंकेबल प्रोजेक्ट। मिस्टर माहेश्वरी, एक आपसे क्लोजिंग कमेंट हम जानना चाहेंगे कि बैंकेबल प्रोजेक्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है, कैसे इसे बनाया जा सकता है, और कोई अगर आप गाइडेंस देना चाहें तो। हरी ने पहले बताया कि पर्सन बिहाइंड द स्ट्रक्चर, यदि आदमी ठीक है, उसकी नीयत ठीक है, नीयत तब ठीक हो गई, मेरा बड़ा अच्छी नीयत है, अब करना क्या होगा उसके लिए ये बता दीजिए। Then you would make a bankable proposal. मिस्टर शर्मा प्लीज, बैंकेबल प्रोजेक्ट से आपका क्या मतलब है, क्या इसकी टेक्निकल इंटीग्रिटीज होती हैं? बैंकेबल प्रोजेक्ट में 5 एलिमेंट होते हैं। पहले तो ये है कि प्रोमोटर, उनके बैकग्राउंड, उनका पास्ट परफॉर्मेंस, वो सब सही होना चाहिए। सेकेंड थिंग, टेक्निकली वो फीजिबल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड थिंग इज उसके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट होना चाहिए, और बैकवर्ड उसका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोसेस कर रहा है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज उसके जो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज को जब फाइनेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंसिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, उसका डेट इक्विटी रेशियो रीजनेबल होना चाहिए। इंडिया में टिपिकली 1.5:1 लेते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो पॉसिबली यू शुड टेक अ लोअर डेट इक्विटी रेशियो। ओके। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका जो प्रोजेक्ट करते हैं हम साइंटिफिक बेसिस पे, तो उसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए कि उसमें डेट सर्विस कवरेज जो है बैंक का लोन का वो एडिक्वेट होना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने जो कहा था कि 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 2 करोड़ के टर्नओवर पे, तो उसमें वो DSCR ठीक नहीं होगा, इसीलिए शायद उन्होंने बैंकेबल नहीं डिक्लेयर किया होगा उसको। बस यही 5 पॉइंट होता है। These are major points and I think everybody will agree with that. चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यही खत्म करेंगे, लेकिन हमारा लास्ट सेगमेंट जिसको हम खत्म करना चाहेंगे वे अब मारुति सुजुकी
सक्सेस मंत्रा, आप सभी से एक एक लाइन का सक्सेस मंत्रा जानना चाहेंगे जो कि आप हमारे तमाम ऑडियंस को के साथ शेयर करना चाहें। एक लाइन का आपका सक्सेस मंत्रा, लक्ष्मण। Every problem has a solution, and as financial experts, we should be able to design innovative solutions for the problems. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क, दूसरे स्पिरिट टू फाइट, be as lean and mean as possible. Number 3 is have an eye on your cause, and that's it. Thank you. Okay, Hari. Quitters don't win, winners don't quit. Follow your heart and damn the world. Just work hard. Just work hard. Keep your confidence yourself. Talent and intelligence are the most wasted thing in the world. They have only 20% role in success. 80% comes from application.